Good afternoon, everyone. Welcome back. Before we begin this session, can I just please remind people to keep the aisles and walkways clear as much as possible for everyone's security. And also, just a reminder, please look after your belongings. And also, please keep this beautiful palace clean, pick up your rubbish afterwards and deposit appropriately. Okay, so on to our next session, the Kahani Connection, Story of My Stories. And introducing Nilesh Misra, introduced by Rahul Pandita. And this session is presented by Red FM. Please, let's another warm welcome for these wonderful speakers. Thank you. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. When my friends from JLF told me that I have to have a conversation with Nilesh Misra, I laughed a bit because for me, having a conversation with Nilesh is like standing in front of a mirror and talking to myself. That's simply because I've known Nilesh for a very, very long time. Now I'm assuming that most of you who have gathered here are admirers of his recent work, admirers of his excellent stories from his radio shows. But I've known Nilesh from a time when he was a journalist in Delhi, even then a master storyteller, but it's just that the medium was different. He used to work for a national newspaper in those days. Now, the thing about Nilesh is that he's a man of ideas, and he has straddled so many mediums, the written, the spoken, the visual, and in the course of his career, he has changed the course of his path so many times that in my private conversations with him, I call him the Brahmaputra, the river Brahmaputra, which changes course so many times. But behind all his endeavor, there's always this excellence for the creation of content for no matter what medium. So I'm hoping that in the next few minutes, we can have a glimpse of his life, the life he leads now, the life he has led in the past. Because like I said, he has straddled so many across so many mediums. It's not possible to speak about everything in the next 40 minutes, but we'll give it a try. So Nilesh, you... इसे आंखें खोल के सुनो. You were a journalist when I met you for the first time. You were a journalist with the Associated Press, and then as a journalist with Hindustan Times. You covered the Kargil War, you covered the Royal Massacre in Nepal, you covered a tsunami, you covered the flood in Bihar. After such a successful stint in journalism, what happened? How did you change the track and decided to go to Mumbai? I remember that conversation I have had with you when you said you wanted to go to Mumbai. So what happened? मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बोलूँगा. मैंने बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैं बहुत सी फिल्में नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे लगता है कि मुझ में ज्ञान ज़्यादा नहीं है, लेकिन अनुभव काफ़ी है. और somewhere I felt that through my travels as a journalist, and we've done a book together, The Absent State, we traveled some 40,000 kilometers over 3 years. Those emotions, that angst, those journeys have stayed, those moments have stayed. And I was feeling a little not out of place in journalism, but ये लग रहा था कि lost opportunities हो रही हैं. कोई गाना देखता था स्क्रीन पे, लगता था कि यार ये क्या लिखा है, क्या बकवास लिखा है. तो लगता था कि मैं चूँकि करीब 10-12 साल से फिल्मों में गाने लिख रहा हूँ, but I wanted to basically take a sabbatical, and I walked up to my editor and I said,
I want to go off to Bombay. And he said, some people can live with regret and some people cannot. And I said, I cannot. So I went and I set up a band. तो जब सबसे पहले मुझे कहा गया था कि एक म्यूज़िक एल्बम बनाइए और उसको बनाने के पैसे मिले थे, तो मुझसे कहा गया कि आजकल म्यूज़िक, नॉन फिल्म म्यूज़िक बिकता नहीं, क्योंकि आप सब तो पायरेसी कर करके हम जैसे कलाकारों का जीना हराम कर ही देते हैं. तो नॉन फिल्म में देयर इज़ नो मनी. तो आप ऐसा करिए, एक बैंड बना लीजिए और उससे पैसा कमा के आप हमें पैसा वापस कर दीजिए. मैंने कहा बैंड मेरे जैसे लोग तो बनाते नहीं, मेरे तो लंबे बाल तक नहीं है. तो वी सेट अप अ बैंड व्हिच वाज अ स्टोरी टेलिंग बैंड, जिसमें मैं बैंड के साथ बैठा और मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक राइटर लेड बैंड बनाते हैं. सर अच्छा ठीक है, तो राइटर क्या करेगा? एंड ओनली, आई स्वेयर, ओनली टू सेव माई जॉब एंड नॉट बी अ नॉन प्लेइंग कैप्टन, आई सेड राइटर कहानी सुनाएगा. बस आई थिंक दैट वाज द मोमेंट दैट चेंज्ड everything for me, because I only to justify my presence in that band and not just remain a lyric writer whose name would be somewhere, but you know, अच्छा तो ये कहानी कैसे सुनाएगा राइटर? मैंने कहा, and I'm thinking and selling my job to my own band as I'm talking. नहीं, वो राइटर आएगा, कहानी थोड़ी सी सुनाएगा, फिर राइटर चला जाएगा, फिर गाना होगा, फिर कहानी शुरू हो जाएगी. मैंने कहा ये this can never work. So there is a line that has been told to me often throughout my career, which now I wear as a badge of honor, which has been told to me in different words, which is, this is a brilliant idea, it will never work. So when I started the band, I was told that by various people, how can a storytelling band work? But we performed at the Kala Ghoda festival in Mumbai, and I was happy to see there were people on trees who were listening to Shilpa Rao, my colleague, singing, and me narrating the stories, and I think that just changed the whole course for me. फिर 6 महीने बीत गए. मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ये अगला लम्हा मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला है? और ऐसे गुजर जाते हैं ये लम्हे, और आप बाद में जब पलट के सोचते हैं कि सोचिए वो लम्हा जब मुझसे किसी ने पूछा था कि राइटर स्टेज पे क्या करेगा, अगर मैं उस वक्त बोल देता कि असल में ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है मैं आपको अपने लिखे गाने दे दूंगा और कहाँ आप, बट आई थिंक दैट मोमेंट चेंज माई लाइफ. तो उसके बाद 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए. मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता था. आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स कि भाई क्या सोचा है. सबैटिकल पे था मैं. मेरे पास पैसे सिर्फ 9 महीने तक सर्वाइव करने के थे, मेरी EMI वगैरह भी थी. एक दिन मैं प्रीतम के स्टूडियो में बैठा था और वी वर वर्किंग ऑन अ सॉन्ग, एंड आई लुक्ड अराउंड एंड आई सेड आई लाइक दिस लाइफ, एंड आई वॉक डाउन एंड आई ईमेल माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्किंग लॉट. Tell us something about your experiences as a journalist. As Nilesh said, Nilesh and I have traveled a lot in the good old days when he was in Delhi for this book called The Absent State, where we traversed through 40,000 kilometers of India's proverbial heart of darkness, from Kashmir to India's northeast, to central and eastern India. ये मैं बेच चुका हूँ अभी. हाँ? मैं बेच चुका हूँ मैं. बेच चुके हैं. और उस ज़माने में मुझे याद है एक नीलेश का स्लोगन हुआ करता था, I prefer a label on my forehead than blinkers on my eyes. I think that slogan has kind of guided his, not only his reporting but the rest of his career also in many ways. Now I know Nilesh that I've learned a lot of lessons, a lot of experience gained from those travels in conflict areas. But what are the lessons you learned from traveling as a reporter through India's hinterland? You know, I think whether as a journalist or as a storyteller, the one biggest mantra that has stayed with me, and that's extremely relevant, I would say today, because social media, especially the surge of social media, has amplified hatred and negativity so much. It's easy to hide behind an anonymous
handle, abuse somebody and run away like cowards. तो जो बातें आप डाइनिंग टेबल पे कहते थे कि अरे वो तो चोर है, अब आप सीधे उसके हैंडल पे एड्रेस कर रहे तू तो चोर है, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है. तो ये एक अद्भुत सुविधा आपको देती है सोशल मीडिया. आई थिंक द बिग थिंग आई ट्राई टू लर्न वॉज टू बी द अदर. दूसरा बन के सोचना. इतना डिवाइसिव आजकल समाज है रिलीजन के बेस पे या कास्ट के. सो मैं एक बार मैंने कश्मीरी मिलिटेंट पाकिस्तानी मिलिटेंट को इंटरव्यू किया था. 2-2.5 घंटे उनसे बात की, और वो ही वॉज इन कैप्टिविटी. He was 25 years old. He was from Bahawalpur town. Used to watch Bollywood films, and here he was, trying to kill people. And at the end of it, I said कि मैं आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आपके हौसले की कदर करता हूँ. So, what is it that would drive a person to pick up a gun? I would want to know that. There was a series I had done called Mission Kashmir, where I traveled with a कश्मीरी मुस्लिम एंड अ कश्मीरी पंडित. और मुझसे पूछा गया कि आप तो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं. मैंने कहा देखिए, अगर मेरा नाम नील मोहम्मद होता तो दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया अलग होता. क्या वो गलत होता? बिल्कुल नहीं. वो एक नज़रिया होता, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक नज़रिया दे दिया जाता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये सही है, ये गलत है. और हम उससे बाहर आके अगर कभी सोच पाएँ, अगर इफ़ वी कैन बी दी अदर, अगर हम दूसरा बन के सोच पाएँ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टोरी टेलर, एक अच्छा राइटर. एज अ स्टोरी टेलर आई बिकम अदर पीपल एवरी डे. आई हैव प्लेड द कैरेक्टर्स ऑफ women and children and even a yellow scooter. I have been a yellow scooter in my stories. I think this is the biggest takeaway I have and the biggest privilege I have, I would say. And थोड़ा इससे ह्यूमिलिटी भी रहती है. आप क्योंकि आजकल जर्नलिज्म में क्या हो गया है कि जर्नलिस्ट भूल गए हैं कि वो स्टोरी कर रहे हैं. जर्नलिस्ट सोचते हैं कि वही स्टोरी है. तो ये एक बड़ी बीमारी फैल रही है पत्रकारिता में. So we'll stay here for a moment. You are still in Delhi. You are working with the Hindustan Times. On one hand, you're traveling with me to the Saranda forest in Jharkhand. You make it sound really romantic, don't you? And well, I was a co-author, so I have to. Right. And at the same time, you're writing these songs filmed on women in scanty clothes. Oh my God. So how do you straddle these two worlds at the same time? Tell us something about your lyrical journey. So for the longest time, my journey as a lyric writer coexisted with my journey as a journalist. कई गाने जो आप तो जानते नहीं होंगे कि मैंने गाने कौन कौन से लिखे हैं, क्योंकि आजकल रेडियो स्टेशन तो बताते ही नहीं कि किसने लिखा है और किसने कंपोज किया है. तो जब पहला गाना मैं लिखा था जिसके नाम लेके मुझे ताना दे रहे हैं, वो था जादू है नशा है, फिल्म जिस्म में. उसके बाद कई सारे गाने आए. एक वक्त तक मैं स्पेशलाइज कर रहा था एक क्राफ्ट में, विच वॉज टू राइट हिट सॉन्ग्स फॉर फ्लॉप फिल्म्स. सो आई रोट बेपनाह प्यार है आजा फॉर कृष्णा कॉटेज. देखिए, आपको पता नहीं. और पता नहीं एक गाना आपने सुना या नहीं. दैट्स माय पर्सनल फेवरेट. मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है. वो मुझे लगता है कि वो नीलेश की जिंदगी के बहुत करीब है. गंदा वाला मत बोलना. हाँ? नहीं, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना. मैंने दिल से कहा रोग से. तो एक वक्त था तो लिखा. और ये मैं कहाँ लिखता था. मैंने कश्मीर के जंगलों में हाईवे पर ड्राइव करते हुए लिखा है. मैंने झारखंड में लिखा है. मैंने कैलिफोर्निया की एक मॉल में टहलते हुए लिखा है. और एक इटली की ट्रेन में, चूँकि एक फिल्म थी 13B जो बड़ी डरावनी फिल्म थी और उसमें एक दो गाने थे, तो शंकर एहसान लॉय रिकॉर्डिंग कर रहे थे और फ़ोन आया था कि यार ये स्कैनिंग क्या है, मतलब इसकी लिरिक्स जो आपने लिखी हैं इसमें ब्रेक्स कहाँ हैं. तो मैं धीरे धीरे गा. बोले आप यार इतने धीरे धीरे क्यों बोल. मैंने कहा मैं ट्रेन में हूँ यूरोप में. यार ये यूरोपियन ट्रेन. तो मैं बाथरूम के अंदर गया और वहाँ मैंने बाआवाज़ बुलंद उनको वो गीत गा के सुनाया कि इस तरह से है. और सो इट कोएग्जिस्टेड वेरी ब्यूटिफुली. नहीं, मैं इस जर्नी की शुरुआत में आपको ले जाना चाहता हूँ. आपका जन्म लखनऊ में हुआ और नैनीताल में आप पले बढ़े.
मैं अपने निजी रिलेशनशिप का थोड़ा फ़ायदा उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बैकग्राउंड उसका पता है। जब आप नैनीताल की झील के किनारे कुछ गाने लिख कर जगजीत सिंह साहब को भेजा करते थे, तो शुरुआत कहाँ से हुई? महेश भट्ट साहब के साथ कैसे मिले आप? जी, so I grew up in Nainital and I used to go to college and मेरा एक काला जैकेट था जिसकी जेब में मैं मूंगफलियाँ भर लेता था और पत्थर की बेंच होती थी झील के किनारे, वहाँ बैठकर कई बार लिखता था लड़कियों को प्रभावित करने के लिए। अक्सर काम कर जाता था। ये बड़ा सस्ता फार्मूला होता है, मैं कल कुछ दोस्तों को बता रहा था। किसी लड़की का जन्मदिन हो, आपकी दोस्त हो, आप उसकी शान में एक गज़ल लिख दें, 2 पैसे का खर्चा नहीं हुआ, और वो हमेशा याद रखेंगी। तो ये मैंने अपना मिडिल क्लास बजटिंग के हिसाब से ये प्लानिंग की थी, बड़ा सक्सेसफुल रहा था। और उन दिनों मैंने एक चिट्ठी लिखी, एक शो आता था सुरभि जिसको रेणुका शहाणे, जिन पर मेरा बड़ा क्रश था, और वो होस्ट करती थी, और सिद्धार्थ काक, देखिए सिद्धार्थ जी तो याद ही नहीं है मुझको, रेणुका जी याद है सिर्फ। तो मैंने चिट्ठी एक गज़ल लिखी और बोला कि ये आप जगजीत सिंह जी को भेज दें, छोटे शहर में नैनीताल, प्री इंटरनेट, प्री गूगल, एवरीथिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो गाएं। जगजीत सिंह जी तक वो उनका एड्रेस मुझे भेजा रेणुका जी ने, मैंने गज़ल भेज दी। जगजीत सिंह जी ने कभी गज़ल नहीं गाई। वो कुछ साल पहले मुझे वो एक एयरपोर्ट पे मिले, मैंने कहा आप ज़िम्मेदार हैं, मैं बॉलीवुड में गाने लिखने लग गया इसलिए, क्योंकि यही वो गज़ल थी जो मैं कई साल बाद, जब मैं पहली किताब जब रिसर्च करने गया हाईजैकिंग की, तो मैं महेश भट्ट से मिला। ये मेरा बॉलीवुड से पहला आमना सामना था। तो मैं बचपन में 10 पैसे का सिक्का लेके बजाता था जन्मदिन की पार्टियों में। वैसे ही मैंने बैग में मैंने इत्तेफाकन कहा कि मैं गाने लिखता हूँ, क्योंकि उनके सामने 2 लोग बैठे थे, एक ढोलक पे एक हारमोनियम पे, एंड दे वर सिंगिंग एंड ही सेड मेक मी गो मैड। वैसे ये बड़े पागल लोग हैं बॉलीवुड के। ये कहानी मैं भट्ट साहब को भी कई बार इसी शिद्दत से वापस सुना चुका हूँ। सो बोले आप सुनाइए, तो मैंने सुनाया और वो कमरे के बीच में खड़े हो गए। और वो गज़ल थी, ख्वाबों की ये ज़मीन है, यादों का आसमां, मैं हूँ उदास शाम है और है धुआं धुआं। तो वो खड़े हो गए और जब पहला अंतरा ख़त्म हुआ तो बोले हिट है। तो वहाँ पे तनुजा चंद्रा और विक्रम, ये पूजा, ये सब, मैंने कहा ये बहुत ही पागल लोग होते हैं बॉलीवुड के भाई। तो खैर मैंने गाना सुना दिया। जब वापस आया तो दिल्ली, तब दिल्ली में रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप ये अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजिए, हम यही आपकी आवाज़ में यूज़ करना चाहते हैं फिल्म में। अब मैं बहुत ही काबिल बाथरूम सिंगर हूँ, इसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ, अपने लाइव परफॉर्मेंसेस में पहले ही ये भूमिका बांध देता हूँ, तो ताकि मेरे नंबर कम कटते हैं। But that's how the journey started, and then I wrote several songs for Bhatt Sahab and then for other people. अब मैं थोड़ा सा गाने लिखने से उकता गया हूँ। मेरा आखिरी गाना था कुछ तो बता ज़िंदगी, बजरंगी भाईजान में। और उसके बाद अब क्या है कि अब जो गीतकार होते हैं बॉलीवुड में, वो उनसे गाने नहीं लिखवाए जाते हैं, रिंगटोन लिखवाई जाती है। रिंगटोन मैं अच्छी लिख नहीं पाता हूँ। तो अब जब मन करता है, जैसे बर्फ़ी में एक गीत था मेरा, क्यों ना हम तुम, तो जब अच्छा लगता है तब। अब आप सोचिए कि दोस्त के दिल पे क्या गुजरी। जर्नलिस्ट दोस्त है, हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता है, एक दिन मेरे पास आता है, मैं सब छोड़ छाड़ के फिल्म में लिखने जा रहा हूँ। दोस्त बॉम्बे चला जाता है, वहाँ कुछ अच्छे गाने लिखता है, एक बहुत ही बकवास फिल्म की पटकथा लिखता है, एक था टाइगर। और दिल्ली वाला दोस्त सोचता है कि ठीक है, धीरे धीरे कर लेगा, और भी अच्छी कहानियाँ आएंगी, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, स्थिति बॉलीवुड में कुछ ठीक नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। और अचानक एक दिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ और हिज वॉइस कम्स टू मी राइडिंग ऑन रेडियो वेव्स, क्रैकलिंग ऑन द FM ऑफ माई कार। और मुझे लगा ये तो आवाज़ नीलेश की है। और अचानक उसके बाद नीलेश का जो इंट्रो रहता है, मैं हूँ नीलेश मिश्रा,
और मैंने फ़ोन किया, मैंने ये कहाँ से शुरू हुआ, ये रेडियो की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि पत्रकार जो है काफ़ी ढंग के थे, लेकिन रेडियो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नीलेश एक दिन रेडियो पर जाएगा और कहानियाँ सुनाना शुरू करेगा जो नॉन जर्नलिस्टिक है, फिक्शनल कहानियाँ हैं। तो वो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आई मीन व्हाट द हेल हैपेंड? राइट। तो एक तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद ये लोग भगा देंगे आपको स्टेज से। ये जो लाल जैकेट वाले हैं बेमुरव्वत हैं बहुत, हाँ, ये अच्छे लोग नहीं हैं। रेडियो हैपन प्योरली बाय एक्सीडेंट। और मैंने जैसे बताया एक एल्बम था, उसके लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए था जो मेरे गाने को, रेडियो के एल्बम के गानों को मशहूर कर सके। तो हमने सुनाया, वो बदले में बोले आप रेडियो शो करेंगे? तो मैंने कहा मैंने शो तो किया नहीं, मैं आरजे बन नहीं सकता हूँ, वो विधा मुझे आती नहीं है, मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है। मैंने कहा कहाँ सुनाएंगे आप? बोले 35 शहरों में। मैंने कहा कितने बजे? बोले 11 बजे सुबह। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा एक मंत्र रहा है कि जो भी अगर नया करें तो फ्रंट फुट पे करें। तो मैंने कहा मैं रात को 9 बजे सुनना चाहूँगा। तो 9 बजे कहानियों की जब यात्रा शुरू हुई, और उससे पहले न मैंने कभी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी हिंदी में, न मैं कभी माइक के सामने गया था। अगर आप शुरुआत की कहानियाँ सुने, एक कहानी है दिवाली की रात, सुनिए किसी ने? वो पहली कहानी है, आई एम वेरी हेजिटेंट, वेरी नर्वस, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग द ब्रेक शुड बी। मतलब अच्छा वक्त था वो पायलट शो लिखा गया था। एक हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा विचित्र होने लगा। हमें लगा कि एक इस देश की एक नब्ज़ है जो हम भूल गए थे कि एग्जिस्ट करती है, जो हमने छू ली है। हॉस्टल से कहने लगे स्टूडेंट्स कि हमने डिनर टाइम चेंज कर दिया है ताकि 9 बजे कहानियाँ सुन सकें। दिन भर बताया गया कि हॉस्टल्स में बहुत शोर होता था, 9 बजे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। दफ्तरों से लोग देर से घर निकलने लगे ताकि 9 बजे ड्राइव कर रहे हों वो। शो सर्दियों में शुरू हुआ था, तो लोगों के पास रेडियो होते नहीं थे, तो ठिठुरते हुए लोग कार में बैठते थे। ये सब एनेक्डोटल जो कमेंट्स आते थे। कई हस्बैंड वाइफ्स ने कहा कि हमारी लड़ाई होती है तो 9 बजने में 10 मिनट पे कहते हैं सुननी है क्या कहानी? तो वो जाते हैं दोनों साथ में, गाड़ी में बैठते हैं, टक से ऑन करते हैं, कहीं तक 1 घंटे में उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। बड़ा खूबसूरत। सो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि यार तुमने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा प्लीज़ मेरे साथ बैठें। मैं उनको फेसबुक के पन्ने पे ले गया, and I took him through what people were writing about our stories, and people said this story changed my life, and I said एक बात बताइए आप, when was the last time I did anything that changed anybody's life? So I think this suddenly became a huge responsibility. हमारी कहानियों में, जैसे रेडियो पे आसानी से आप सुनते हैं, to create humor, people make fun of people on the basis of their weight, the color of their skin, the way they talk, उनके सर पे बाल हैं कि नहीं, वो किस तरह से चलते हैं, वो देश के किस हिस्से से हैं। हमारी कहानियों में आप कभी भी ये नहीं पाएंगे। हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारा सरोकार है, हम जो लिसनर है उसको डिफीटेड महसूस करके कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर कहानियाँ सैड हों तो भी एक खूबसूरत लॉन्गिंग उसमें होती है, ऐसी हमारी कोशिश है। धीरे धीरे लोगों का जो रिश्ता बना, तो a lot of depression patients wrote in, and these are in the hundreds, who said that they were healed. A lot of cancer patients said that they felt stronger to deal with their ailment, their pain, because they heard the stories. हमारे पास तस्वीरें भेजी लोगों ने कि एक महिला हैं हरे कपड़ों में, आईसीयू में लेटी हैं, हेडफोन है, मुस्कुरा रही हैं क्योंकि कहानी सुन रही हैं। I mean, for a communicator, what can be more humbling, what can be more beautiful that जो आप कर रहे हैं as a collective, मैं और हमारी जो मंडली है, वो लोगों की ज़िंदगी को इस तरह से छू पा रहा है। और मैं उन्हें अक्सर याद दिलाता हूँ कि आप करोड़ों लोगों के पास आज जो रोज़ पहुँचते हैं, मैं कहता हूँ कि हम्बल रहिए आप भी, आपकी भी अब फॉलोइंग है मंडली के सदस्यों की, लेकिन इन कहानियों की जो रीच है और इन कहानियों का जो असर है लोगों पर, वो
वो फिल्मों का नहीं होता है। फिल्में देख के रिश्ते टूटे हुए सुधरते नहीं हैं। आप जो करते हैं वो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बिकॉज broken relationships have often got mended because somebody heard a story. I got a call from Kashmir from a woman who said, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। और मैंने कहा कैसे? बोली कि I was in a very bad relationship and the stories gave me courage to break out of it, and next week I'm about to get married to my childhood sweetheart. So ये this has been truly life changing for me, and I think मुझे हम सब बेहतर इंसान हो पाए हैं, मैं बेहतर इंसान हो पाया हूँ ये कहानियाँ सुनाते सुनाते। हमारी मंडली के लोग, I just think we've become better people because, to go back to what we were discussing, we tried to be the other. अब दोस्त का एक और सदमा देखिए। अब नीलेश मिश्रा बॉम्बे चले गए हैं, गाने लिख रहे हैं, फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, रेडियो शो शुरू किया है। और मेरी ये तमन्ना है कि मेरे हीरो बनने की कोई तमन्ना नहीं है, पर मैंने सोचा कि कभी मैं बम्बई जाके नीले से मिलूंगा और प्रियंका चोपड़ा के साथ एक सेल्फी खिंचवा लूँगा। और अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि इतने देर में नीलेश का फ़ोन आया, उन्होंने कहा ये सब छोड़ छाड़ के वो लखनऊ चले गए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक अखबार शुरू किया है जो हिंदुस्तान का पहला गाँव का अखबार होगा, जिसका नाम है गाँव कनेक्शन। इस जर्नी के बारे में खुद ही बताएंगे, क्योंकि ये अखबार जो पब्लिशिंग है, जो सर्कुलेशन है, जो कंटेंट है, उसके कई आयाम तोड़ चुका है। तो उस जर्नी के बारे में खुद ही बताएंगे। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। 2:06 हो चुके हैं। अभी है टाइम, कुछ सवाल भी लेना चाहेंगे। Whenever I traveled as a journalist, I used to always wonder, because I've traveled extensively in villages, I used to wonder, गाँव का अखबार क्यों नहीं है? गाँव में तो इतनी चीज़ें हैं कहने को, गाँव में इतना बदलाव आ रहा है, गाँव में चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। अब अखबार कैसे शुरू किया जाता है मुझे तो पता नहीं था। तो एक बार मैं लखनऊ गया था अपने घर, और मैंने ऐसे ही 25 जर्नलिज्म इंटर्न्स को बिठा के उनको एक तकरीर दी। वो शाहरुख खान वाली थी ना, 70 मिनट वाली, कुछ वैसी थी। मैंने कहा किसी दिन हम इस दिन की ओर पलट के देखेंगे कि हमने कुछ बड़ा किया, हमने कुछ अच्छा काम किया। और मैंने कहा कि मेरा ये मानना है, और सचमुच मेरा ऐसा मानना है, कि अच्छा पत्रकार होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। 25 थे, अगले दिन 5 इंटर्न बाकी आए। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। बहुत लंबी कहानी है, अभी नहीं कहूँगा, लेकिन एक अखबार एक आदमी कैसे चला सकता है जिसके पास एक धन्ना सेठ नहीं है, जिसके पास कोई डीप पॉकेट्स नहीं है। मेरे ख्याल से केस स्टडी है ये। आप में से अगर कोई मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो लखनऊ चले आइएगा, हम ये कहानी आपको बताएंगे कैसे हमने एक ब्रांड बनाई जब हमारे पास ब्रांडिंग पे 1 रुपया खर्च करने को नहीं था। इत्तेफाक ये हुआ कि एज एन आर्टिस्ट थिंग्स वर हैपनिंग विद मी। मैं बहुत महंगा आर्टिस्ट बन गया था, तो वो जितना कमा पाता था सब मैं गाँव कनेक्शन में 1-1 रुपया लगा देता था। अभी भी यही करता हूँ। और इस तरह से हम एक चीज़ को बना पाए। 4 साल हम जिंदा रहे, 4 साल अखबार चलता रहा और बढ़ता रहा। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी। Tell us something about your initial, the initial reaction to your newspaper from your friends, from your erstwhile colleagues. I again heard the same sentences. This is a brilliant idea. It will never work. And at that point, शुरू में तो क्या था कि पहला 1-1.5 साल तो So Cute पे निकल गया। अरे So Cute यार, नीलेश ने रूरल पेपर शुरू किया है। तो सोचा ये सठिया गया है। My father had left his work in Canada to come back to his village to start a village school with my mother called Bharati Grameen Vidyalaya. कुछ वही दोबारा हो रहा था। जब पापा वापस आए थे 1960s में, तब भी गांव में लोग कहते थे कि ये पागल हो गए, इनको डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट करना है, इसके बाद विलायत वापस चले जाएंगे। तो मैं जब आया तो यही किया। अरे यार, लोगों ने सोचा ठीक है कुछ एनजीओ टाइप कर रहा है, अकल ठिकाने आ जाएगी, अखबार चलाने चले हैं, लोग हंसते होंगे बहुत से। 1-1.5 साल निकल गया। उसके बाद तब तक और कोई हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं था, बिकॉज कोई बड़ी ब्रांड छोड़ के आता नहीं था। आज जितनी बड़ी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको बता रही हैं कि वक्त कम है।
जितनी बड़ी मेन स्ट्रीम संस्थाएं हैं, बड़े अखबार हैं, सब हमारे पास आने को इच्छुक हैं। हमारे पास अक्सर सामर्थ्य नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम उनको हायर कर सकें। बट आई थिंक वी बीन एबल टू, मैं चाहे गुवाहाटी जाता हूँ या बेंगलोर जाता हूँ या यहाँ पे आता हूँ, कई लोग टकराते हैं कि हम गांव कनेक्शन से जुड़ना चाहते हैं। ये दिस गिव्स अस ग्रेट स्ट्रेंथ। और जब भी कोई ऐसा मैसेज भेजता है, मैं तुरंत हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर प्रसारित करता हूँ कि देखिए कितने लोग, एंड इट जस्ट गिव्स अस ग्रेट स्ट्रेंथ एज अ स्टार्टअप। सो अभी हमने दिसंबर में एक गांव कनेक्शन स्वयं फेस्टिवल किया, विच वॉज 1000 इवेंट्स across 25 districts in 7 days, because we have enormous partnerships on the ground now. अगर आप कोई यूपी की ओर आ रहे हो तो हम अप्रैल में 24 से 28 अप्रैल तक 33 ज़िलों में 33, इस बार और बढ़ा दिया, लालची हो गए हम लोग, 1000 इवेंट करने जा रहे हैं। और फिर से स्वयं फेस्टिवल समर का होगा और विंटर का होगा। सो आई थिंक इट्स बिन अ shaky journey, but it's a difficult war, but a good war to fight. I'm proud of what we've achieved together as a team. One last question, and then we'll throw the floor open to the audience, because I'm assuming that many would like to ask you questions. Do you think, from your experience as a journalist to someone who's running a newspaper now, do you think the landscape of journalism has changed? And more importantly, do you think that the footwork has gone away from journalism? Absolutely, one of my favorite cribs. So ever since this whole digital news thing has started, what it has done is that the mainstream news organizations are abdicating from the field. तो ब्लॉक में जो रिपोर्टर होता था, ज़िले में जो रिपोर्टर होता था, because today you can have a hall the size of this tent and start a news organization. You will get investment because ROI is easy to track. You will get measure impact because the clicks and the views are there for you to see on a Google Analytics page. लेकिन मैं ऐसे जब जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पीछे रह रहा हूँ इस डिजिटल वाली उस रेस में, because what it is doing is it is changing the way journalism is done in India. Journalism is now a lot about aggregation. Aggregation is a nice word. It's actually copying, pasting, stealing from everybody's content. There will be the cute cat video, which will suddenly be on all platforms. There will be people fighting with each other and doing a riot. That video will suddenly be on all platforms. That is news. A lot of the news generated today is actually created by the user. उसने एक तस्वीर भेजी, उसने एक वीडियो भेजा. So I think that is something that is a great challenge for journalism today. We definitely need the scale of digital, but we cannot give up the footwork of traditional legacy media. जो अच्छा था वो छोड़ रहे हैं हम. So हम गांव कनेक्शन में ये कर रहे हैं. We've just created a big network to create community journalists, where we can जो ज़मीन पे अपनी जड़ें हैं वो और मजबूत करते जाएं. और डिजिटल हम सीख रहे हैं, आप लाखों करोड़ों लोग तो हम पहुंचना चाहेंगे. But I think that's the big challenge. I think before I throw the floor open for questions, may I ask you to read a very brief passage from something you've written recently? Okay. How long do we have? We have time, so don't worry. 7 minutes. I'm tracking. She said 5 minutes. 5, okay. What I'm going to read will not be done in 5 minutes, so just take Okay, questions. so let's throw the floor open for questions. Hello, sir. Sir, right here. My name is Benjamin Baptist, and मैंने सर आपकी बहुत कहानियाँ आप ही की आवाज़ में सुनी है. मैं ही बोलता हूँ यार. Promise. सर आपकी आवाज़ बहुत मीठी है. बहुत शुक्रिया. सर मेरा एक सवाल है. जब आप कहानी सुनाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये, जब भी आप कहानी सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी मेरे चारों तरफ है, इर्द गिर्द है, वो कहानी मेरी है और मैं उस कहानी का पार्ट हूँ. तो आप जब वो सुनाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर कहानी अच्छी होती है तो मेरे नरेशन में पता लग जाता है. मंडली में मेरा एक बैरोमीटर है. इट्स द LITT test, which has nothing to do with LIT. It is the lump in the throat test. अगर कहानी के अंत में मुझे खुद को lump in the throat है, ये मेरा सबसे बड़ी परीक्षा होती है. अक्सर जब मैं पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड करता था तो अगर बहुत खूबसूरत कहानी होती थी तो उस वक्त में मैं रुक जाता था. मैं इसलिए नहीं रुकता था कि, और मैं खांसना वो मैं चीटिंग करता था, क्योंकि असल में I had a lump in my throat because the story was, I was in the story, I had become that character, and
आई फेल द पेन और दैट जॉय, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा कि रोज़ आई कैन बी अ न्यू पर्सन, और अगर वो ईमानदारी से मैं निभा पाऊँ। मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट ना बन जाऊँ। आई डोंट वांट टू साउंड, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं है कहानियाँ सुनाना, तो मैं चाहूँगा कि हमेशा ईमानदारी से जो पात्र निभा रहा हूँ उसको बन के निभा पाऊँ। Hi, this is जी me. जी So Rahul referred to you as the Brahmaputra, and मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि नीलेश मिश्रा को ऐसा क्या मोटिवेट करता है कि वो कुछ ना कुछ नया नया करना चाहते हैं हमेशा, और अब आप और क्या नया करने वाले हैं इसके बाद? So 2 questions. बहुत अच्छा सवाल है। हम चाह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग को नए नए आयाम तक ले जाएं। तो हमने अभी गांव कनेक्शन डिजिटल नाम की एक नई एंटिटी बनाई है, जिस पर हम 75 करोड़ 750 मिलियन पीपल तक कहानियाँ मोबाइल फ़ोन और ऑडियो के माध्यम से पहुँचा पाएंगे। अगर आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर रेडियो नहीं है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, you will still be able to hear our stories. We are going multilingual also now. We are launching a big, I don't want this to be about me. So I'm mentoring new storytellers who can narrate in various languages, also in Hindi, who can write in multiple. आप में से कोई भी अगर इच्छुक हो तो ज़रूर हमसे जुड़े. So that is one. And also, can we do new geographies? तो हम जैसे सावन ऐप पर हैं, उसके नए उस पर रेड पर हमारा शो आता है, तो कैसे हम स्टोरी टेलिंग को नई विधाओं में, नए ज्योग्राफीज़ में ले जाएं, और उससे इम्पैक्ट क्या है? कैन वी ऑल्सो कन्वे इन्फॉर्मेशन? सो आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ शो कॉल्ड दीदी की डायरी, which is actually about the unsung heroes on the ground like ASHA workers who are the backbone of the health system of this country but are unknown. उनकी कहानियाँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी विधा के अंदर नई नई चीज़ें करूँ। Go ahead, please. जी, keep it brief. ये भैया बैल्कनी वालों पे बड़ा फेवर तुम मार रहे हो, हैं? सर, एक बहुत ही काबिल कलाकार ने कहा है कि यार उससे पूछ लेना यार, उसको मैंने उस दिन टाला था सेशन में। हाँ सर, एक बहुत ही काबिल कलाकार ने कहा है कि कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। तो सर कभी एक आप स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, कभी एक लिरिक्स राइटर होते हैं, जर्नी आपने जर्नलिस्ट की भी जी है, रेडियो भी कर रहे हैं, गांव कनेक्शन तक आ गए हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मज़ा या मतलब कौन से वाले दिल जो चेहरे की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा वो किस में दो आया? चीज़ों में आता है। एक छोटा सा सवाल सर, एक और मैं ऐड कर दूंगा। अरे वो छीनने आ गए वो, और उनका साइज देखा है? 2 चीज़ों में आता है, रेडियो पे कहानियाँ सुनाने में और गांव कनेक्शन का फ्रंट पेज सामने बैठ के बनवाने में। मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, फ्रंट पेज रोज़ मैं बनवाता हूँ। जी कहाँ है? अरे यार ये बच्ची को बोल दो ना, एक वहीं से बोल दो। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें वो नहीं सुनाऊंगा, मैं वो गाना सुनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबुरे। क्यों न हम तुम तलाशें बगीचों में फुर्सत भरी छाँव रे, चल भटक लेना बाबुरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बाबुरे। One last question. He's not even looking at you. He's one just last constantly question. One last ignoring you. question. One last question. Sir, as I perceive, journalism and storytelling are two seemingly contradictory fields, and as I can see, you've stayed connected with both of them simultaneously. Is that a conscious effort to arrive at a convergence? Because I haven't read you as a journalist, but I've definitely heard you as a storyteller. क्यों ऐसे And लोगों I को आने feel- दिया जाता है यहाँ पर?
And I feel that in your stories there is a very specifically journalistic element of, you know, for instance, जो setting है, context है, उस पे बहुत ध्यान दिया जाता है. So let me answer that, yeah. So in your journalistic attempts also, is there a desire to bring in the you know, the dreamy aspect that you but retain in your story? I think that you cannot be a good journalist or a good writer unless you're a good observer and a good listener. तो वो जो visual nature है writing का, वो hopefully आप पाएंगे मेरी journalism में भी and वो कहानियों में भी है. तो पढ़िएगा Google करके. Thank you so much, Mr. Misra. Rahul is scared of that gentleman in the red who he knows can yank him off the stage. Thank you very much. Thank you very much. It was a great session. Beautiful song.